Good evening. So again, today's focus is on problem solving. Theory-wise, we have covered ample theory. Let us start with questions. Polynomials 3. I believe we have close to 15 solid questions. There is one small concept about predicting the number of roots. We'll spend few minutes on that. Let us solve. First question is on the screen. Give it a try. Similar questions we will face in inequalities and graphs also. Fx is equal to a equation, a cubic equation. Then we have hints. F0 and F1 are of opposite signs. Which of the following is necessarily true? इनमें से कौन सी चीज definitely true है, necessarily true है? Apply common sense, give it a try. Two to three step problem we have here. If you put 0 in this, it becomes P. If you put 1 in this becomes 1 minus 4 minus 3 plus P. You have been told that this outcome and this outcome are of opposite signs. They are of opposite signs. That means when you multiply P with P minus 3, you must have negative outcome. You must have a negative value. If you know how to solve inequalities on a basic level, you will get answer in 10 seconds. If not, replace numbers. 0 is part of this value. 0 is part of this answer. 0 is part of this answer. If I put 0 in this, 0. Is it below 0? Is it negative? No. 0 cannot be part of my answer. So A and C are gone. Now in this and in this, the difference is here P is a negative number. Here P is a positive number. Take any value in between. I'm taking P is equal to 1. If I put 1 here, 1 into 1 minus 3 minus 2 is minus 2. Is it negative? Yes. This fulfills my requirement. That is the answer. We will see in future something called as wavy curve method. It will give us a better understanding of inequalities. Right now I'm applying the concept of replacement. Whatever is easier for you to replace, check. Easiest numbers are 0, plus 1 and minus 1. 0 plus 1 minus 1, if you put and check, you'll have your answer pretty fast. Easiest values to replace: 0, plus 1 and minus 1. Try. In the equation, x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 is equal to 0. If x and y are integers, find the largest possible value of 3x plus 4y. Largest possible value of 3x plus 4y. They are integers. Go on, try. Take 2 minutes.
whenever dealing with squares of x, squares of y, you have to work with integers. Try to complete squares. देखो, here what do you have? Here you have -4. What is half of -4? -2. तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दो. I'll work with only this x square minus 4x. मैंने क्या कहा? इसको हाफ इज -2. -2 का स्क्वायर 4 प्लस कर दो और माइनस कर दो. सेम थिंग. व्हाट इज हाफ ऑफ दिस? -4 इज द हाफ. उसका स्क्वायर 16. y स्क्वायर -8y. 16 को प्लस कर दो और माइनस कर दो. ये बच गया आपका -5. Overall 0. So the first term becomes x minus 2 square. Second term becomes y minus 4 square. What does the right side become? 25. What is 25? 25 is 5 square. Now x and y are integers. हमें क्या चाहिए? Largest possible value. क्योंकि integers हैं और largest चाहिए. I would want them to be positive integers क्योंकि add करके और बढ़ जाए. Negative integers नहीं चलेगा. So कैसे बनता है 5 का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर बनता है 3 के स्क्वायर से और 4 के स्क्वायर से. 3 square plus 4 square is 5 square. You could also test the reverse value, 4 square and 3 square. So if this value is equal to 3, x minus 2 is equal to 3, x must be 5. Then this must be equal to 4, y minus 4 is equal to 4, y must be 8. Check. What is the outcome? 5 into 3, 15. 8 into 4, 32. The outcome is 47. Let me check the reverse outcome. If I take this is equal to 4, x minus 2 is equal to 4, x must be 6. Y minus 4 is equal to 3. Y minus 4 is equal to 3. Y must be 7. Let us check the outcome. 6 into 3, 18. 7 into 4, 28. The outcome is 46. So out of these, which is the larger one? Yes. हम नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज हमें मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम वुड मीन पॉजिटिव इंटीजर्स. So I'm imagining this could be 3 or this could be 4. There are two values of x. There are two values of y. So there are two values of 3x plus 4y. Completing square से ये बन जाएगा. Absolutely. Squares need to be completed. If the question was, how many possible values can this have? How many possible values can this have? How many? How many possible values can 3x plus 4y have? तो आपके केसेस बनाने पड़ेगा. अब आपको नेगेटिव भी लेना पड़ेगा आपको. You will have to take negative values for x and y. तो और नंबर्स बनेंगे आपके. Try this. Give it a shot. Fx denotes a cubic equation. Now what will fx minus 1 denote? This is called transposing a function, shifting a function. I am shifting x to x minus 1. कोई दिमाग नहीं लगाना. Simple calculations. Here, complete this.
Done? चलो, fx is given to you. We need to find f x minus 1. तो सीधा सीधा तरीका है, आपको x की जगह x minus 1 पुट करना है. You need to put x minus 1 in place of x. यहां पुट करना है x minus 1. So what you have is x cube minus 3x square plus 3x minus 1. Simply cube का formula. 3 times x square minus 2x plus 1, 4x minus 4 plus 7. You have to simply start manual calculation here. So this becomes x cube. थोड़ा भी ध्यान देंगे. This will be added inside. It will be 3x square. 3x square negative. ये कट जाएगा. This will go inside. It will become minus 6x. क्या है ये? This is 3x minus 6x. So minus 3x. Minus 3x plus 4x. That is plus x. Minus 1, minus 4, minus 5, minus 5 plus 7. Just verify. अच्छा, ये अंदर जाके 3 बन जाएगा बेटा. This will become 3. Minus 1 plus 3 is 2. 2 minus 4 minus 2. Minus 2 plus 7 is 5. Answer option C. So 3 steps are required to get the answer out of this. X cube plus x plus 5. Perfect. Very nice. Chalo. So देखो, I keep on saying, in CAT preparation, the first thing is your ability needs to develop. आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए. अभी सॉल्व हो गया आपसे ये क्वेश्चन. अब कोई जुगाड़ सोचो. इन एग्जाम आपको लगता है 2 minutes 2.5 minutes में यू कैन सॉल्व, गो अहेड, मेहनत करो, सॉल्व करो. यू फील देखते ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना है, देन थिंक ऑफ जुगाड़. हर चीज जुगाड़ से नहीं बनती, जुगाड़ से कैट नहीं निकलता है. नो मैटर कौन लास्ट माइल टू कैट कर रहा है, कौन रेस टू 99 कर रहा है. देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज, आपका जो है फंक्शन सेम है, फंक्शन ऑपरेटर सेम है. एक में आप अंदर x पुट कर रहे हो और एक में आप x minus 1 पुट कर रहे हो. अगर मैं x और x minus 1 पे ध्यान ना दूं, अगर दोनों के इनसाइड नंबर सेम है, नंबर नॉट द वेरिएबल, नंबर, अगर नंबर सेम है तो आउटकम भी सेम होना चाहिए दोनों का. मैं ओरिजिनल इक्वेशन में 0 पुट करता हूं, 0 पुट करके क्या बन जाता है, ये 7 बन जाता है 0 पुट करके. यहां पे लैंग्वेज, यहां पे 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1. इन सब में 1 रख के देखो, जो भी 7 देगा इज योर आंसर. यहां अगर आपने 1 रखा, 1 plus 2 plus 1 plus 3, तो ये आ जाएगा 1 plus 2, 3 plus 1, 4 plus 3, 7. ये भी 7 दे गया. पुट 1 हियर, ये भी 7 दे गया. ये आपको 9 दे देगा. फॉरगेट दिस. पुट 1 हियर, ये भी 7 दे गया. सो आंसर कैन बी आइदर ए और सी. ध्यान से देखो, द लास्ट वन कैन नॉट बी द आंसर. आंसर इज आइदर ए और सी. अब आपने 0 रखा था, चेंज द थीम. अगर मैं इसको 1 पुट करता हूं, इफ आई पुट 1 हियर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 plus 3, 4 plus 4, 8, 8 plus 7, 15. 1 पुट करके 15 आ रहा है. इसको अगर 1 बनाना है, x को क्या करना पड़ेगा, 2.
2 पुट करके 15 आना चाहिए. If I put 2 in this, 8 plus 2 plus 5, 8 plus 2 plus 5, that is 15. तो ये मैच हो गया. इसमें रख के देखो 2, 8 ये बन गया और ये बन गया 8 plus 8 16, 16 plus 5 21. मुझे क्या चाहिए था? 15. So answer matches with third one. ये जुगाड़ तरीका है. What is the idea? It is the same function. If the function is same, if the value of the term inside is same, the result must be same. मैंने कहा सीधा 0 बनाओ. इसको 0 बनाया तो 7 बच गया. इसको 0 बनाने के लिए x must be 1. 1 पुट करके 7 देने वाला वैल्यू ये था, 7 देने वाला वैल्यू ये था. दोनों 7 बन रहा था. मैंने कहा 0 से आगे बढ़ो. अगर 1 पुट करेंगे दिस बिकम्स 15. यहां 1 बनाने के लिए आपको 2 पुट करना पड़ेगा. पुट 2. केवल ये अकेला 15 देता है. योर आंसर इज ऑप्शन सी. तो ये जुगाड़ वाला अप्रोच है. जीरो से 2 वैल्यू आ गए बेटा. यहां पे भी 7 आ गया, यहां पे भी 7 आ गया और यहां पे भी 7 आ गया. 2 ऑप्शंस है ए एंड सी. तो एक और चेक करना पड़ा हमें. आगे बढ़ते हैं. ट्राई दिस. अभी अंबानी का कुछ शादी वादी हुआ है तो समथिंग रिलेटेड टू दैट. ट्राई. Ambanis are distributing some gold coins among the closest friends. That are attending Anand's wedding in Italy in such a manner that the first guest in queue gets 100 coins plus 1/10 of the remaining number of coins. Second guest gets 200 coins plus 1/10 of whatever coins remain with Ambani's. Third guest gets 300 coins plus 1/10 of whatever remains with Ambani's, and so on till the last guest in the queue. By coincidence, it turns out that each guest gets same number of coins. Then which of the following could be true? There must be 7 guests. Each guest must receive 900 coins. Total number of coins with Ambani's must have been 6,300. Option D, both A and B are true. So go on, try. The biggest hint or the most important piece of information is all the guests have received same number of coins. There's a connection between first guest, second guest, third guest. The value is equal. Try, take 2 minutes.
क्या इक्वेशन बन रही है, क्या आंसर आ रहा है, बताओ। तो अभी ऑप्शंस में थोड़ा खेल देखते हैं। वी आर बीइंग टोल्ड जितने भी गेस्ट हैं, एवरी गेस्ट गेट्स सेम अमाउंट ऑफ कॉइन्स, तो ये टोटल आना चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी अगर दोनों सही हो जाएं, इफ दे बोथ बिकम ट्रू, तो आप क्या कह रहे हो? 7 गेस्ट हैं, हर किसी को 900 कॉइन्स मिल रहे हैं, दैट इज 6300। तो अगर ए और बी से तो सी को सही होना पड़ेगा ना। सो ए एंड बी दोनों सही साथ में नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। there's a possibility एक सही है दूसरा गलत है, पहला गलत दूसरा सही है, या फिर दोनों गलत है, ये भी हो सकता है। बट एक साथ दोनों ट्रू नहीं हो सकते, दैट ऑप्शन इज गॉन, दैट चॉइस इज नो मोर देयर। तो अभी इफ आई ट्राई टू फॉर्म इक्वेशंस हियर, if I imagine the total coins to be x, coins, I'm starting with coins, total coins as x। पहला गेस्ट कहता है मेरे को 100 कॉइन चाहिए, तो 100 कॉइन कम हो गए। कीप योर आई ऑन बचा कितना है। बचे हुए में से द फर्स्ट वन सेज मेरे को 1/10 और देते जाओ। सो फ्रॉम दिस नंबर यू टेक अवे 1/10। व्हेन यू टेक अवे 1/10 तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा 9/10। ये बच जाएगा, ये रिमेनिंग है 9/10। ना सेकेंड गेस्ट सेज मेरे को तो 200 कॉइन्स चाहिए, तो 200 कॉइन्स कहां से जाएंगे? यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम हियर। ये बच गए। सेकेंड गेस्ट ने 200 कॉइन ले लिए, ये बच गए। अब बचे हुए कॉइन्स का भी व्हाट इज ही सेइंग, मेरे को 1/10 और चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टेस्ट योर एबिलिटी टू फॉर्म कंटिन्यूअस इक्वेशंस। ये कॉइन सेकंड को मिले, ये कॉइन फर्स्ट को मिले, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सो सी इफ आई ट्रांसफर दिस ऑन द अपोजिट साइड, या फिर इसको इधर लेके आ जाओ, तो 100 कैंसल होके ये बन जाएगा 100। अब थोड़ा सा पेन है यहाँ पे, यू विल हैव टू डील विथ बिग इक्वेशन। देखो आपने ये 9/10 को अंदर लेके जाओ, बाहर क्या रखा है? 1/10 रखा है। ये 9/10 अंदर जाएगा, इट विल बिकम 9/10x। ये 9/10 यहाँ पे जाएगा, 9/10 इंटू 100, तो ये बन जाएगा -90 -200। ये गिवन है अपने को।
अब यार ऑलरेडी एक डिनोमिनेटर में 10 है, ऐसा करो, ये वाला 10 कैंसिल करो. इफ आई कैंसिल दिस 10, इफ आई कैंसिल दिस 10, तो ये 1000 बन जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड क्यों? इस सबको 10 गुना करना पड़ेगा. What do I have on the left side? I have x minus 100 is equal to, ये क्या है? 1000. और अंदर में क्या है? 9/10x minus 290 minus 20. सॉल्व करो, इसको इधर लेके आओ. x minus 9/10, 1/10x. 100 को इधर भेज दो, ये बन जाएगा 1100. 1100 minus 2900, that means 810. x is equal to 8100 coins. 8100 coins अगर थे, c तो गलत हो ही गया. आप 8100 को क्या 7 लोगों को डिवाइड कर सकते हो? a गलत हो गया. The only option possible is B, Bombay. Every guest is receiving नहीं ना बेटा, 1000 प्लस 1 है ना, 1000 प्लस 100 1100 आएगा ना. प्लीज पे टेंशन. ये 1/10 है, ये 1/10 है बेटा, 1/10. ये 1/10 है, ये 1/10. 8100 आएगा is the number of coins. If the coins are 8100, पहला वाला ऑप्शन निकल गया. क्योंकि 8100 is not a multiple of 7. 7 लोगों में बटेगा नहीं. 8100 है तो ऑप्शन सी बाहर हो गया, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज ऑप्शन बी. Guys, is the answer solution clear? ऑप्शन से इसमें कोई चेक नहीं कर सकते आप, बिकॉज दो वेरिएबल है, आपको दोनों ही नहीं पता है. आप लेटर से आप चेक करते देयर आर 7 गेस्ट्स, तो अब उससे आगे कैसे बढ़ोगे आप? वंस यू नो देयर आर 7 गेस्ट, आप कैसे करोगे? आंसर बी है बेटा. आई एम सेइंग अगर चेक करना हुआ तो. द क्वेश्चन वाज ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? ऑप्शन से इसमें कुछ नहीं कर पाओगे अभी आप. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है. आपको ये कहा जा रहा है fx is a 4th degree or 4th order polynomial with integer coefficients with no common factor. The roots of fx are -2, -1, 1, 2. If p is a prime number greater than 97, the largest integer that divides fp for all values of p. जैसे कल को मैं आपको नंबर दे दूं 2 3 4 दे दूं, 3 4 5 दे दूं, 4 5 6 दे दूं,
तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा इनको डिवाइड करेगी? हमेशा। जब आप यहां पर आते हो, दिख रहा है आपको ये 2 into 3 है, ऊपर देखो 5 7 यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर 4 है क्या? नहीं है। तो व्हाट इज कॉमन? ऑल ऑफ देम 2 and 3। इनमें से 2 और 3 हमेशा कॉमन है। ऐसे क्वेश्चंस में या तो आपको 100% डिविजिबिलिटी रूल्स पता हो, कोई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो, या फिर आप वैल्यूज पुट करके चेक करो। सबसे पहले तो क्या क्या कहा गया? fx इज द फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, तो उसके 4 रूट्स पता है आपको, 4 रूट्स। तो fx कैसा दिख रहा होगा? fx इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 1। बेटा रूट माइनस होते हैं, x माइनस 2, x माइनस 1, ये दोनों हो गए। x प्लस 1, x प्लस 2, ये आपका फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है। इसमें आप क्या पुट करने जा रहे हो? 97 से बड़ा प्राइम। तो 4-5 प्राइम पता होने चाहिए आपको 97 से ऊपर। प्राइम कहाँ होते हैं? 6 के मल्टीपल के आसपास होते हैं। 96 is a multiple of 6, 102 is a multiple of 6, 108 is a multiple of 6, 114 is a multiple of 6। इससे एक ज्यादा प्राइम होता है, ये हमें पता है, हमें इससे ज्यादा चाहिए। इससे एक कम और इससे एक ज्यादा। बेटा दोनों ही प्राइम है, ये मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ दिस। आपको ढूंढना पड़ेगा 109 और 107 में से कौन सा प्राइम है, कौन सा नहीं, ये ढूंढना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। क्या ये 2 का मल्टीपल है? नहीं। 3 का मल्टीपल है? नहीं। 5 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। तो ये प्राइम है। 109 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं। क्या 7 का मल्टीपल है? नहीं। तो ये मेरे पास 4 प्राइम नंबर आ गए। तो जो आंसर आना इतने में आ जाएगा। मैंने 101 लिया, डाल दिया इसमें। 101 माइनस 2 99, 101 माइनस 1 100, 101 प्लस 1 102, 103। इनमें कॉमन क्या है मुझे निकालना पड़ेगा आगे जाके। मैंने 103 लेके रख दिया। 103 मीन्स 101, 103 मीन्स 102, यहाँ रख दिया 103, 104, 105। अभी देखो अभी तक कॉमन क्या क्या मिला आपको। आपको ना फैक्टर्स में उतरना है। फैक्टर्स में ये खुद एक प्राइम है, ये खुद एक प्राइम है, तो ये दोनों तो कॉमन हो नहीं सकते। ये दोनों कॉमन तो हो नहीं सकते। 99 क्या है? 3 स्क्वायर इंटू 11। 100 क्या है? 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये क्या चीज है? ये है 2 इंटू 51, 2 इंटू 3 इंटू 17। थोड़ा है पेन, करना पड़ेगा ये आपको। ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 17। 105 क्या होता है? 5 इंटू 21, 5 इंटू 3 इंटू 7। और 104 होता है 4 इंटू 26, सो 2 क्यूब इंटू 13। अब देखो दोनों में कहीं 13 दिख रहा है क्या? नहीं ना। क्या क्या दिख रहा है? रहने दो उसको वहां पे। अगला 107 लेके रख दो। 105 आ गया, यहाँ पे आ गया 106, 108 और 109। 109 खुद एक प्राइम होता है, गायब कर दो इसको। अभी इनमें जो क्या कॉमन दिख रहा है? 105 बन गया 357 से, ये हो गया। 106 अभी थोड़ी देर पहले बनाया था हमने, नहीं। 106 इज 2 इंटू 53, 2 इंटू 53 खुद एक प्राइम होता है 53। 108 क्या होगा? 108, 2 स्क्वायर इंटू 108 होता है 4 इंटू 27, 3 क्यूब। अब देखो ऊपर से नीचे देखो कॉमन क्या क्या है। ऊपर से देखो नीचे, क्या 17 कॉमन है? यहाँ पे देखो आप, 17 कॉमन है? नहीं है। क्या 11 कॉमन है? नहीं है। क्या 53 कॉमन है? नहीं है। तो छोटे नंबरों पे ध्यान दो। क्या 7 कॉमन है? देखो अभी तक मुझे ऊपर वाले में 7 नहीं है, बाकी दोनों में 7 है। 7 को बाहर कर दो। हर जगह क्या कॉमन है? 235, 235, 235। देखो क्या कॉमन है यहाँ पे क्या है? 2 का क्यूब आ गया आपके पास,
3 का क्यूब आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, यहां पर क्या आ गया, 2 का पावर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 5 आ गया, नीचे देखो 2 का क्यूब आ गया, 3 का पावर 4 आ गया और यहां पर 5 आ गया। तो 5 तो पक्का है सब में, 5 इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम, सब में 5 कॉमन है, 2 क्यूब कॉमन है सब में देखो आप, और 3 का स्क्वायर है कॉमन। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इज 72, 72 इंटू 5 इज 360। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा पेन्स टेकिंग है, बट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना काफी अच्छा अप्रोच है। अगर ये सभी नंबर कंसेक्यूटिव होते, अगर सभी नंबर कंसेक्यूटिव होते, देयर इज अ डिविजिबिलिटी रूल, अगर ये होते 4 नंबर कंसेक्यूटिव, तो मैं कहता 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल है 100%, फिर हम वहां से आगे बिल्ड करते। लेकिन ये 4 के मल्टीपल सारे, और दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, यहां पर बीच में एक वैल्यू मिसिंग है, ध्यान दो आप, इज वन वैल्यू मिसिंग हियर। तो मैंने 3 नंबर पुट किए, x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 101, 103, 107, और चेक कर लिया क्या कॉमन है सब में। सब में 5 एक बार कॉमन है, देखो यहाँ पे सब में 5 एक बार कॉमन है, सब में देखो 3 का स्क्वायर कॉमन है और 2 का क्यूब कॉमन है। टाइम टेकिंग है, यस। और कोई तरीका नहीं बेटा श्योर शॉट आंसर लाने का। एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन इसमें और देता हूं, आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। उससे ना पूरा आंसर नहीं आता, उससे पार्शली आपको हिंट पता पड़ता है। आई कैन नॉट कम बैक टू दिस स्लाइड। देखो आपकी जो इक्वेशन थी x-2, x-1, x+1, x+2। अब आपको ये पता है कि कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म का होता है या इस फॉर्म का होता है अगर वो ज्यादा बड़ा हो 5 से। तो मैंने इस वाले फॉर्म को लेके यहां पुट किया, 6x+1 - 2, तो 6x-1 आ गया, 6x+1 - 1 तो 6x आ गया, यहां पुट किया तो 6x+2 आ गया, यहां पुट किया तो 6x+3 आ गया। तो आपको दिख रहा है 6 कॉमन है यहां से, इन दोनों में 2 कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है। तो आपके पास यहां पे 36 तो कॉमन है ही है। अब उसके बाद क्या बनेगा, यू नीड टू बी केयरफुल। तो अब देखो आपने क्योंकि 97 से आगे कहा था प्राइम, और आपने 6x+1 का तरीका लिया है, 6x+1 का तरीका लिया है, तो आपके पास अगर ये 103 बनता, 103, तो आपने x को क्या लिया यहाँ पे, x को आपने यहाँ पे ले लिया 17। तो यहाँ 17 रखना ही पड़ेगा वापस आपको, यहाँ 17 रख के कैलकुलेट करोगे, यहाँ 17 रख के कैलकुलेट करोगे, उससे अच्छा अगर प्राइम नंबर ऑलरेडी आपके पास है उसको पुट करो ना, वो 6x से झमेले मत पड़ो। इट्स अ फेयरली एडवांस क्वेश्चन, यस। Z का क्वेश्चन है बेटा, ये Z का क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन फ्रॉम Z। चलो
इनको बोलते हैं काउंटिंग रूट्स। मुझे आपको एक छोटा सा पैटर्न समझाना है। इसको डेकार्ट्स थ्योरम कहते हैं, कोई डिस्कार्ट थ्योरम बोलता है, कोई डिकार्ट थ्योरम बोलता है। ये थोड़ी सी वेग थ्योरम है और मैंने कैट में आज तक इनके क्वेश्चन नहीं देखे, बट बुक्स में मॉक्स में आ रहे हैं तो आपको सिखा देता हूं मैं। थ्योरम ऐसी है, आपको अगर कोई इक्वेशन गिवन है 5x to the power 4 minus x cube minus 2x square plus x plus 7, ऐसा। तो आपको ये पता है इसके 4 रूट होंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? चारों रियल हो सकते हैं। क्या हो सकता है? 2 रियल हो, 2 इमेजिनरी हो सकता है चारों इमेजिनरी हो। क्यों नहीं हो सकता? अब ये मेथड हमें हेल्प करता है पॉसिबिलिटी चेक करने में। इस मेथड का इन वैल्यूज से कोई लिंक नहीं है, आपको केवल साइन चेंज ध्यान करना है। अगर x पॉजिटिव होता तो ये इक्वेशन ऐसे ही बनती, ये इक्वेशन ऐसे ही बनती। आपको ना केवल साइन चेंज ध्यान देने हैं। यहां से यहां पे एक साइन चेंज है, यहां कोई साइन चेंज नहीं है, देयर इज वन साइन चेंज, कोई चेंज नहीं है। इसके 2 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं, जरूरी नहीं होना, हो सकते हैं, पॉसिबल है। आपको x को माइनस ले लेना है। आप जब यहां माइनस पुट करके पावर 4 लोगे तो वो तो प्लस ही बन जाएगा फिर से। आप जब इसमें माइनस पुट करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। आप जब इसमें माइनस पुट करोगे, माइनस का स्क्वायर बन के तो फिर से सेम रहेगा। तो जो इवन पावर वाली पोजीशन होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। अब देखो, कोई साइन चेंज नहीं है, देयर इज वन साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं है, देयर इज वन साइन चेंज। तो इसके 2 नेगेटिव रूट्स पॉसिबल हैं, बट एक्चुअल में है कि नहीं आई डू नॉट नो। अगर किसी तरीके से मान लो ऐसा आ जाता कि इसका एक ही रूट पॉसिबल है नेगेटिव, अगर 2 पॉसिबल हैं पॉजिटिव, एक पॉसिबल है नेगेटिव, मतलब तीसरा कंफर्म इमेजिनरी है। और अगर तीसरा कंफर्म इमेजिनरी है तो मतलब इमेजिनरी 2 हो जाएंगे। तो दिस थ्योरम इज वेरी वेग, ये हमको पॉसिबिलिटीज बताती। अभी क्या सुनो, लैंग्वेज सुनो, आपको केवल साइन चेंज देखना है। नॉर्मल इक्वेशन में साइन चेंज देखो, ये पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल दैट द इक्वेशन विल हैव 2 पॉजिटिव रूट्स। है कि नहीं आपको नहीं पता, यू कैन नॉट पॉसिबली सॉल्व एंड फाइंड, केवल चेक करने का तरीका है। आप x को माइनस पुट करो और साइन चेंज करो, तो इसके 2 पॉसिबल रूट्स हैं नेगेटिव। इसके 2 पॉसिबल रूट्स हैं नेगेटिव। ये समझा क्या आपने को? ये क्लियर है? अभी पॉसिबल है बट जरूरी नहीं है। आई एम सेइंग अगर 2 की जगह 1 होता तो क्या क्या होता। तो भाई बहुत ही वेग थ्योरम है और बहुत ही यूजलेस थ्योरम है। क्वेश्चंस नहीं आए अभी तक कैट में, बट मॉक्स में लोग यूज करें तो मे बी यू विल सी समवेयर। अभी ये बता दिए पी एन क्यू आर पॉजिटिव, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव। ये माइनस साइन बेटा इक्वेशन का है, क्यू का नहीं है। अब पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ द रूट्स, द रियल रूट्स कैन बी हो सकते हैं। तो नॉर्मली आप देखो यहां से यहां पे देयर इज वन साइन चेंज,
कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अच्छा आप ये मत सोचना सर x की पावर 6 मिसिंग, कुछ नहीं कर सकते आप, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी। आप x की पावर 0 लिख के यहां कर दोगे, 0 इंटू एक्स की पावर 6, बट डोंट डू दैट। जो गिवन है उसमें साइन चेंज देखो, यहाँ पे एक और साइन चेंज है, तो दो पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। हम रियल ही गिन रहे हैं, हम रियल रूट्स ही गिन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रियल ही गिन रहे हैं। पॉजिटिव दो हो सकते हैं। अब मैं x को माइनस पुट करूंगा, यहां माइनस करोगे तो बाहर आ जाएगा, यहां माइनस करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके प्लस बन जाएगा। यहां माइनस पुट करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ना, बिकॉज माइनस की पावर 4 विल कैंसल आउट। यहां माइनस पुट करोगे इट विल कैंसल आउट। अभी देखो साइन चेंज, 1 साइन चेंज, 2 साइन चेंज, यहां पे कोई चेंज नहीं है, एंड देन अगेन 1 साइन चेंज। तो अभी सुनो, यहां पर 3 रूट पॉसिबल है। देर आर 1, 2 and 3. 3 negative roots are possible. That means there are 5 real roots possible. एक बार साइन चेंज देखो, मैंने गलत तो नहीं किया कुछ। There are 5 real roots possible. तो क्वेश्चन फ्रेमिंग मिस्टेक करी है मैंने। 5 रियल और इसके 2 इमेजिनरी रूट हो सकते हैं। ऑप्शन ई आएगा बेटा। देर आर 5 रूट्स पॉसिबल विच कैन बी रियल। एक बार साइन चेंज देखो सही किया है हमने, x को नेगेटिव किया तो फर्स्ट टर्म विल बिकम नेगेटिव, second term will become positive, third term will remain same, fourth term will remain same, 7 तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज। तो 3 नेगेटिव पॉसिबल है इसके, 2 पॉजिटिव पॉसिबल है, 5 रियल पॉसिबल है। पॉसिबल है, जरूरी नहीं है होना, मे बी माइट बी। ई इज द आंसर बेटा। 5 रूट्स आर पॉसिबल, 5 रियल रूट्स आर पॉसिबल। Try this. The number of complex roots can be. Complex roots can be. अभी नॉर्मल में ही इसका साइन चेंज गिन लो। यहां से देर इज 1 साइन चेंज, 1 साइन चेंज, 1 साइन चेंज। तो 3 पॉजिटिव होंगे रियल, ऐसा हो सकता है। ये मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कहते हैं। होंगे तो मैक्सिमम 3 पॉजिटिव होंगे। जब हम x को नेगेटिव पुट करेंगे दिस विल बिकम माइनस एक्स टू द पावर 7। ये माइनस का पावर कैंसिल हो जाएगा, यहां माइनस करोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। नाउ डू यू सी, इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, देर इज नो चेंज इन साइन, मतलब देर आर 0 नेगेटिव रियल रूट्स पॉसिबल। अब क्योंकि इसकी पावर 7 है, पावर 7 है और 3 पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, मतलब 4 इमेजिनरी रूट हो सकते, क्योंकि 7 रूट्स आपको चाहिए, 7 रूट्स होंगे, पावर 7 है तो 3 पॉजिटिव हैं, 3 पॉजिटिव हो सकते हैं, तो बाकी बचे हुए 4 इमेजिनरी हो सकते हैं।
if the roots of the following equation are in arithmetic progression, what can be value of b? Arithmetic progression. अभी हमारा आगे एक टॉपिक आएगा इन सीक्वेंस एंड सीरीज. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें नंबर्स में गैप बराबर हो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ आई टेक नंबर्स 3 + 4 + 4, ये इनको एपी कहते हैं. कुछ भी प्लस सकता है. 3 - 2 -2, ये भी एपी है. आप प्लस करो सेम या माइनस करो सेम, इट इज एपी. तो सिखाने वाली बात ये है, कभी भी अगर आपको 3 नंबर अज्यूम करने हैं एपी में, क्योंकि रूट्स है, पावर 3 है, देयर विल बी 3 रूट्स, तो उनको ऐसे अज्यूम किया जाता है. अगर बीच वाली वैल्यू को k मान लें तो अगली वैल्यू में डिफरेंस ऐड होगा और पिछली वैल्यू में माइनस होगा. जैसे अभी आपने 3, 7, 11 लिया था, आप चाहो तो k प्लस डी, k प्लस 2d मान लो, या फिर अगर बीच वाले को आप k मानते हो तो राइट साइड में डिफरेंस ऐड होगा और पीछे साइड में डिफरेंस माइनस होगा. ये थोड़ा अच्छा और आसान तरीका है अज्यूम करने का. मैंने ऐसे आपके लिए पहले भी क्वेश्चंस बनाए हैं जिसमें सेंट्रल वैल्यू को अज्यूम करके जल्दी बनता है. तो मैं अज्यूम कर रहा हूं जो मेरे रूट्स हैं a, b और c वो इस फॉर्म में है. ये बीच का वैल्यू b है, आगे डिफरेंस प्लस होगा और पीछे डिफरेंस माइनस होगा. तो ये क्या चीज है? ये 15 है, माइनस है 15 है. 15 क्या है? एडिशन ऑफ रूट्स. आप अगर इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 15. सीधा सीधा आपको वैल्यू मिल गया b, मिडिल रूट का वैल्यू मिल गया. आगे का वैल्यू 5 + d, पीछे का वैल्यू 5 - d. अब ये तो हमको निकालना है. दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ये हिंट गिवन है. इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. यहां पर देखो ये रूट है आपके, दीज आर द रूट्स. ये क्या चीज के बराबर है? 105 के. आई प्रेज्यूम प्लस माइनस मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो. 5 and 5 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा 25 - d², x + y, x - y, x² - y². तो ये सॉल्व करोगे, d² इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू +2 - 2. एक ही बात है. अगर d पॉजिटिव है तो दीज आर द रूट्स. अगर d नेगेटिव होता तो ये बनते हमारे रूट्स. है तो सेम ना, है तो सेम ट्रिपलेट. ये कब है? व्हेन d इज इक्वल टू -2. ये कब है रूट? जब हमारा d इज इक्वल टू +2. हमें क्या चाहिए इनसे? ये वाला वैल्यू. अब ये क्या होता है? ये होता है ab, bc, ca. ये हो गया ab 15, ये हो गया bc 35 और ये हो गया ca 21. दैट इज योर आंसर. तो एक छोटा सा नहीं बेटा, 4 कॉम्प्लेक्स रूट पॉसिबल है. पेयर 2 होंगे बेटा. पेयर विल बी 2.
बेटा अल्फा बीटा थीटा लो चाहे ए बी सी लो, उनके नाम में क्या रखा है? रमेश सुरेश हरीश ले लो, नाम उनका, रूट्स हैं तीनों। अल्टीमेटली आंसर तो मल्टीप्लाई करके आएगा ना। आप भी अगर अल्फा बीटा थीटा लोगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू थीटा, अल्फा इंटू थीटा, इससे आंसर आएगा आपका। हमने एबीसी ले लिया, उनको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, ये बनाओ आप लोग, ट्राई करके देखो एक बार। this equation this equation is a divisor of this, then find a plus b। ये इक्वेशन इसकी डिवाइजर है। अब आप a प्लस बी उससे निकाल के बताओ। तो देखो, आप ये सही सोच रहे हो कि अगर किसी फंक्शन का मुझे कोई डिवाइजर दे देगा तो उसका अपना रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। लेकिन ये सिखाते टाइम आपसे कहा गया था पावर मस्ट बी वन। यहां पर पावर वन है क्या? नहीं। अब आप ये भी सोच सकते हो सर इसको हम फैक्टराइज करके बना सकते हैं क्या? हम दो बार रिमाइंडर निकाल देंगे। देखो ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? बी स्क्वायर इज फोर, माइनस फोर ए सी इज थ्री इंटू थ्री, 38 है इसका डेल्टा, इसका डेल्टा 38 है। याद है आपको? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी नेगेटिव है तो प्लस बन जाएगा। तो ये आपको बड़ी अजीब सी सर्ड रूट देगा। इसको आप पुट कर सकते हो कैन में, क्या ये हो पाएगा आपसे? कैन यू पुट दिस वैल्यू हियर? नहीं। तो शुद्ध शाकाहारी मेथड लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। कैसे? यहां पर क्या पावर है इसका? यहां पर पावर टू है, यहां पर पावर क्या है? थ्री। तो हाउ कैन आई और व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई विथ अ स्क्वायर टू जनरेट पावर फाइव? इसका मतलब है आप इसमें एक थर्ड डिग्री का इक्वेशन लगा रहे हो, आप इस तरह का क्यूबिक इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऐसा ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी ये इक्वेशन बनेगी। तो बहुत से लोगों को पहली बार में ये सवाल बहुत इजी लगता है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। जिनको इजी लगेगा वो भी गलत है, जिनको डिफिकल्ट लगेगा वो भी गलत है। इट्स अ मीडियम लेवल मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आप अगर इनको सॉल्व कर दोगे ए बी सी डी को, तो आपको ये वाले ए भी मिल जाएंगे। भाई बेसिकली अगर आपने दोनों इक्वेशन को फाइंड कर लिया तो मल्टीपल करके आंसर आ जाएगा ना। आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते लॉन्ग मेथड से, क्योंकि ए और भी फंसेगा फिर आपसे, ए और भी सॉल्व नहीं होगा आपसे। अब देखो, सबसे पहले तो ये नंबर और ये नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो हाईएस्ट पावर बनेगी। यहां पर थ्री है, यहां पर सिक्स है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली टू होना चाहिए, 100% टू होना चाहिए। और जो ये 12 है, ये 12 कैसे बनेगा? इसमें तो एक्स की पावर है ही नहीं। यू विल मल्टीप्लाई माइनस थ्री विद द लास्ट टर्म। माइनस थ्री में क्या मल्टीप्लाई करके 12 बनता है? माइनस थ्री में माइनस फोर मल्टीप्लाई होके 12 बनता है। एनी डाउट सो फार? हाँ, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। तो
अभी यहां पे आप देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म निकल गए आपके। अभी कितने टर्म बच गए? 2, बी और सी। अब देखो मैं थोड़ा कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 3x² माइनस 2x माइनस 3 और यहां पे 2x³ प्लस bx² प्लस cx माइनस 4। अब इनको सॉल्व करें कैसे? आप सीधे मल्टीप्लाई कर डालो। ये और ये मल्टीप्लाई होके बन गया 6x⁵। अब संभल के, ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी तो पावर बनेगी 4। ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होके बनेगी पावर 4, और जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो भी पावर बनेगी 4। मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 3bx⁴। मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 4x⁴। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किससे मैच होना चाहिए? इससे। 3b माइनस 4 इज इक्वल टू -5। थोड़ा प्लस माइनस चेक करना एक बार। 3bx⁴ माइनस 4x⁴, ये दोनों मिलके बनना चाहिए -5। और -5 दिया है, ये मिस्टेक करके बेटा ये +5 होना चाहिए, ये +5 होना चाहिए। मिस्टेक करे क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम पे। आई हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि अगर ऐसा लोगे तो आपका b 1/3 आ जाएगा डेसिमल। कैन 1/3, ये +5 कर दो इसको, तो आपको इसको सॉल्व करके मिल जाएगा 3b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3। अब ये भी आपको मिल गया एक और वैल्यू 3। अभी क्या बच गया? c बच गया। अभी आपको ये नंबर पता है, देखो बेटा थोड़ा संभल के, आपको स्क्वायर का पावर पता है। स्क्वायर का पावर कैसे निकालें? स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो ये वाला, ध्यान से पे अटेंशन, ये वाला टर्म यहां मल्टीप्लाई होगा तो -12x⁴ स्क्वायर चाहिए ना आपको, बन गया। ये वाला नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा -2c, बन गया स्क्वायर। और स्क्वायर कहां से होगा? ये वाला नंबर यहां मल्टीप्लाई होगा -3 × 3 -9x², बन गया आपका -12 -2c -9 इज इक्वल टू कितना गिवन है? -1 गिवन है आपको। -1 गिवन है आपको। तो ये हो गया आपका -21। इधर भेजोगे तो बन जाएगा 20 अपॉन -2 करना आपको। ये आपका ABC का वैल्यू आ गया। एक बार फिर चेक कर लो। यहां पर स्क्वायर के सामने का नंबर पता है आपको, स्क्वायर बनाना है। ये वाला 3, ये वाले -4 से -12x², ये वाला -2 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो -2cx², और ये हमें x² ऑलरेडी है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -9x²। -12 -2c -9 इज इक्वल टू -1। यहां से आपको पता पड़ गया c इज इक्वल टू -10। अब आपको सारे वैल्यूज पता पड़ गए। मैं बीच में यहाँ पे कोशिश करता हूं लिखने का। व्हाट वी हैव हियर, 3x² -2x -3, और अंदर व्हाट डू वी हैव? 2x³ प्लस 3x² -10x -4। अब आपको ये चाहिए, आपको a चाहिए। a क्या है? x का क्यूब है, क्यूब। तो क्यूब कैसे बनेगा? ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपको आएगा -30x³। और कैसे बनेगा? ये वाली वैल्यू यहां मल्टीप्लाई होगी तो -6x³। और क्यूब कैसे बनेगा? ये वैल्यू यहां होगी -6x³। तो -42x³ इज इक्वल टू -ax³। तो आपको a मिल गया 42। आपको b का वैल्यू चाहिए, b के साथ में पावर क्या है? x। तो देखो दिस विल मल्टीप्लाई विथ दिस, तो ये बन जाएगा आपका 8x।
दिस 3 नेगेटिव विल मल्टीप्लाई हियर, तो ये बन जाएगा आपका प्लस 30x, और कहीं से x बन नहीं सकता, तो आपके पास बन गया 38x, थोड़ा संभल के, 38x इज इक्वल टू माइनस bx, तो आपका b आ गया -38, तो 42 माइनस 38 इज इक्वल टू 4। टेक योर टाइम, कंफर्म, ये क्लिक किया क्या आपने को? काफी इलेबोरेट है। आराम से लो, आराम से देखो। सी ये वाला जो सी है ये निकालना आप चाहते हो, यू वांट टू फाइंड द सी। आप सबसे पहले राइट साइड में देखो किसका किसका कोएफिशिएंट है आपके पास। आपके पास पावर 5 का कोएफिशिएंट है, पावर 4 का है, और पावर 2 का है। तो पावर 2 निकालने के लिए व्हाट वी डिड इज, पावर 2 निकालने के लिए ये वाला 3x² हमने -4 से मल्टीप्लाई किया, तो -12x²। पावर 2 निकालने के लिए वी मल्टीप्लाइड दिस -2x विथ cx, तो -2c, ये 2c है बेटा, 2c(x²), और वी मल्टीप्लाई दिस -3 विद दिस, तो -9x², -12 -2c -9, ये किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो यहां से कैंसिल होके हमारे पास आ गया 20, 20 को हमने उधर भेज दिया बाय 2, तो -10, c इज इक्वल टू -10। तो आप कितने ही फास्ट क्यों ना हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे 3 मिनट मांगेगा, 3 मिनट से ऊपर मांगेगा। डन, मूविंग ऑन। एक बार पेन लेके आप खुद से ट्राई करोगे ना ये क्वेश्चन, तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। If roots of this equation are 3 consecutive even numbers such that b is less than equal to 600, find maximum possible value of c। अब यहां पर क्योंकि कैपिटल ABC यूज किया हुआ है, तो मैं रूट्स में ABC नहीं यूज कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं रूट्स आर PQR। आप कह रहे हो ये जो वैल्यू है b का, ये b क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 को ऐड करके बनता है। आप कह रहे हो ये 600 से कम है। अगर ये सच है, इफ दिस इज ट्रू, तो मुझे निकालना है c का वैल्यू। c का वैल्यू क्या होगा? PQR, और मुझे इसे मैक्सिमम करना है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मैक्सिमम पॉसिबल। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कैसे बनेगा? हाउ कैन वी मेक इट मैक्सिमम पॉसिबल?
तो देखो जितना पी क्यू आर ज्यादा होगा उतना प्रोडक्ट ज्यादा होगा। और आपने क्या कह दिया, तीनों कॉन्जिक्यूटिव इंटेजर्स हैं। अब देखो मर्जी है, आप मुझे बोलोगे सर इक्वेशन बना के बताओ, वो बन जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, कैन आई से अगर तीनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो ये आपस में काफी नजदीक होंगे, ये तीनों वैल्यू आपस में नजदीक होंगे। जैसे 2 4 6 भी आ गया, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नजदीक होंगे, ज्यादा दूर नहीं होंगे, अंदाजन बातें कर रहे हैं। तो मुझे इन तीनों का वैल्यू 200 के आसपास चाहिए, सम अराउंड दैट, थोड़ा कम ज्यादा चलेगा, और इवन नंबर चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा करता हूँ, छोटे नंबर ट्राई करता हूँ। मैंने ले लिया 10 12 14, इनका मल्टीपल 120, इनका मल्टीपल 140, इनका मल्टीपल 168। मैं अभी 400 तक पहुंच पाया हूं, दिस इज रफली रफली अराउंड 40428। मुझे 600 तक जाना है। मैंने ले लिया 12 14 16 ए बी सी। अब थोड़ा निकालो कैलकुलेटर, या फिर आप मुझे आंसर बताओ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू? 168। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू? 160 प्लस 32 192। देखो 200 के नजदीक आ गए। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू? 160 प्लस 84, 140 244। एक बार कंफर्म करो। 160, 160 प्लस 64 224। कहां तक वैल्यू पहुंची है? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14 कैरेड ओवर 1, 3 12 18 कैरेड ओवर 1। आप 584 तक पहुंच चुके हो। यू हैव रीच्ड 584। इससे आगे जा पाओगे क्या? क्योंकि अगले अगले कौन से रूट आएंगे? अगले आएंगे 14 16 18। तो आपको बढ़ाना ही 6 7 नंबर है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। ये आपके रूट्स हैं, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? ये आंसर है आपका। 12 14 16 इज द आंसर। 2688 is the maximum possible value of these equations. इजी सवाल है, बहुत हैवी नहीं है। ट्राई दिस।
जो कैपिटल ए बी सी हैं वो इसके रूट्स हैं. इफ कैपिटल ए बी सी आर द रूट्स ऑफ दिस, आपको एक नया इक्वेशन बनाना है हुज रूट्स आर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए. तो ये गलती बिल्कुल ना करना कि आप ए बी सी निकालने की कोशिश कर रहे हो. जो इक्वेशन हमें गिवन है क्यूबिक, ये होता है फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. ये होता है आपका फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. अब इसके हिसाब से ये वाली टर्म तो इंटायरली मिसिंग है, तो आपको पता पड़ गया a प्लस बी प्लस सी इज 0. और ये जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू -5 के बराबर है. और a इंटू बी इंटू सी जो है वो -12 के बराबर है. ये बेटा माइनस साइन इसको आ जाएगा -12 के बराबर है. अब ये अगर तीनों हमारे रूट्स हैं, ये अगर हमारे तीनों रूट्स हैं, तो पहले मैं एक एक करके जाता हूं. सम ऑफ रूट्स, मैं इनको और इनको ऐड करूंगा तो a आ जाएगा 2 बार. इनको ऐड करूंगा तो b आ जाएगा 2 बार और c आ जाएगा 2 बार. तो 2 बार a प्लस बी प्लस सी आएगा विच इज ऑल्सो 0. ए बी सी 0 है तो 2 बार भी 0 ही होगा. अब अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लूं 2 एट अ टाइम, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, थोड़ा संभल के, बी प्लस सी, मैंने इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. एक्सपैंड करो, करना पड़ेगा. ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ए बी, ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी. बहुत लंबी लंबी इक्वेशन बनेगी, दैट इज ओके. बी सी प्लस बी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी. आप थोड़ा ध्यान दो, आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया एक एक बार. अब थोड़ा ध्यान दो कितनी बार आपके पास टर्म बन रही है और रिपीट होंगी बार बार. ए बी एक बार बन गया, ए बी एक बार बन गया और ए बी एक और बार बन गया. तो ए बी बन गया 3 बार. तो अगर ए बी 3 बार बन गया तो हर चीज अब 3 बार बनेगी. एवरीथिंग विल फॉर्म 3 टाइम्स. अब 3 में से मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं 2 बार यहां लिख रहा हूं और एक बार अलग से लिख रहा हूं क्योंकि 3 बार बन रही है ना. अब देखो ए सी एक बार, 2 बार और 3 बार. मैंने 2 बार यहां लिख दिया ए सी और एक बार अलग लिख दिया. वैसे मैंने लिख दिया 2 बार बी सी और यहां पे लिख दिया बी सी. अब ये क्या चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर का. और आखिरी में क्या बच गया, प्लस ए बी बी सी सी ए. थोड़ा पिंच है, थोड़ी मेहनत है, बट करना पड़ेगा. ये तो 0 है, दिस इज 0. तो प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या आ गया, फिर से ए बी बी सी सी ए आ गया. वो किसके बराबर है, -5 के बराबर है. प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स -5 के बराबर है. अब आपको क्या चाहिए, तीनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए. आपको तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, मैं यहाँ पे और एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर लेता हूं. ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. अब एक्सपैंड तो करना पड़ेगा ना. मैं अगर फर्स्ट और लास्ट को देखूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस, this will be a square
प्लस बी सी प्लस ए बी। मैं पहले दो को एक्सपैंड करता हूँ, बेटर रहेगा, फास्टर रहेगा। इनको एक्सपैंड करता हूँ तो आई हैव ए बी, आई हैव ए सी, आई हैव बी सी प्लस आई हैव बी स्क्वायर। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना है सी प्लस ए से। तो ये जब मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो बन जाएगा ए बी सी, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ए स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बी सी स्क्वायर, फिर बन जाएगा ए बी सी। तो मतलब राउंड राउंड अबाउट इक्वेशन चल रही है, इसको कंप्लीट करो आप लोग। तो मैं और थोड़ा सा एक स्लाइड ऐड करके आपको सॉल्व करके बताऊं। केवल और केवल मैनुअल कैलकुलेशन का काम है और कुछ नहीं। लेट मी ऐड अ स्क्रीन। मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा था। ये मल्टीप्लाई यहां पे होगा ए बी, ये मल्टीप्लाई होगा ए सी, ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा बी सी। अभी और क्या लगाना है, सी प्लस ए, सीधा वैल्यू लगा के रखेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ए बी सी, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ए स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई होगा ए सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट सेकेंड, ये मल्टीप्लाई होगा ए सी स्क्वायर, फिर से ये ए बी सी आ जाएगा, ए स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर सी, ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई होगा बी सी स्क्वायर ए बी सी। मेरे पास ए बी सी कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। ए बी सी ये आ गया, दिस इज इक्वल टू ए बी सी, ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर बी। अब ये क्या पैटर्न बन रहा है, ये व्हाट इज दिस पैटर्न, व्हाट इज दिस पैटर्न। आपको देखो ए स्क्वायर जो है बी के साथ में भी है, सी के साथ में भी। यू हैव ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर आपके पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस आपका सी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल थ्री कैसे ब्रेक डाउन करोगे। हाउ डू यू प्लान टू ब्रेक डाउन दिस मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि आपका ए बी सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो है, तो जो ए बी है दैट इज इक्वल टू माइनस सी, तो ये माइनस सी स्क्वायर है। ये क्या है, ये माइनस बी के बराबर, तो ये क्यूब बन जाएगा आपका। ये ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब, ये बन जाएगा माइनस ए क्यूब, और ये बन जाएगा 2ab। आपने एक और चीज पढ़ी है, व्हेन एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स इज जीरो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज 3abc, इज 3abc। तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है ये 3abc के बराबर है। तो आपका आंसर आएगा 2abc माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस abc। और abc कितना था, -12, तो ये कितना हो जाएगा, +12। ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। टेक योर टाइम, लिखो इसको पहले आप, थोड़ा सा एडवांस है। टेक योर टाइम, राइट दिस डाउन। तो फाइनल इक्वेशन आपको दे दूं मैं।
चलो, तो आपका ABC क्या, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका है माइनस ABC, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका 12 आया। देखो आप, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स क्यूब, एडिशन ऑफ रूट 0 है, 0x², फिर दो को मल्टीप्लाई किया तो आपका फिर से -5 आ गया पूरे का पूरा, -5x। अब एक ही फर्क है, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 12 आया, तो आपको यहाँ -12 रखना पड़ेगा। तो आपका इक्वेशन आएगा दिस 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 इज इक्वल टू 0। बस लास्ट टर्म ही अलग है। तो थोड़ा लंबा इसलिए हुआ ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन, कि देखो ना, आपको A+B, B+C, C+A सब सब घुमा फिरा करना पड़ रहा है। Which of the following conditions must be true for the equation x cube minus ax square plus bx minus c to have two roots of equal magnitude and opposite sign? इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर दो रूट आपस में बराबर हैं बट अपोजिट साइन के हैं? तो एक तरीका है, आप इसमें अपना पूरा मेहनत लगा दो रूट्स निकालने के लिए, ABC निकालने के लिए। दूसरा तरीका, आप रूट्स अज्यूम करके शुरू करो। यू आर टेलिंग मी दो रूट्स बराबर हैं वैल्यू में, मैग्नीट्यूड में, बट साइन अपोजिट है। मैंने एक रूट को ले लिया 2, एक को ले लिया -2, आपको जो मर्जी तीसरा ले लो, मैंने इसको ले लिया 5, कुछ ले सकते हो आप। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनती है? x³ माइनस इनका एडिशन, तो 5 आएगा बीच में। अब दो दो करके मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे +10, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -10। ये माइनस बाहर आएगा बेटा, ध्यान देना, माइनस बाहर आएगा। और आखिरी में क्या होता है? माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम, सबका प्रोडक्ट होता है। इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो खुद आ जाएगा -20। तो आपकी जो इक्वेशन है, इसमें फिर एक बार ध्यान दो, ये -a है, तो आपका a इज इक्वल टू 5 है। ये b है, ये b है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ b, तो b इज इक्वल टू -4। और ये है c, ध्यान से देखो, c क्या है? -c, तो आपका यहां से आ जाएगा c इज इक्वल टू -20। अब इनमें क्या लिंक है? डू यू सी a इंटू बी इज इक्वल टू c? ये रहा आपका आंसर, a इंटू 2/3, a इंटू 2/3 इज इक्वल टू b इंटू c। ऐसा देखो है क्या? पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, राइट साइड में नेचुरल नंबर है और लेफ्ट साइड में 10/3। a² इंटू बी इज इक्वल टू सी, a² 25 इंटू बी, तो ये -100 इक्वल टू -20 हो सकता है क्या? नहीं। आंसर, आपने कहा दो रूट साइज में बराबर हैं
बट उनके साइंस अपोजिट हैं। एक अगर प्लस के, दूसरा माइनस के है। नहीं, नन ऑफ दीज है तो फिर भी आप चेक कर लो। आपको मैं थ्योरी सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो मैंने सारी चेक कर दिया आपके लिए। अब ये और एक लेवल थोड़ा आगे का सवाल है। जैसा आपने कुछ देर पहले वो a प्लस बी प्लस सी वाले में देखा, तो वैसे एक स्टेप आएगा। क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 8। अब इनको यूज करके मुझे ये निकालना है। हाउ डू आई फाइंड दिस? इंटरेस्ट में आपको तीनों इक्वेशंस का जरूरत पड़ेगा, दो दो तीन तीन बार। सबसे लॉजिकल चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है, आप इसको स्क्वायर क्यों नहीं कर देते? चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये ए बी और सी का स्क्वायर है। ए का पावर 4, बी का पावर 4, सी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 36। इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। ये वैल्यू मुझे पता है नहीं, बट 36 के बराबर है। 36 में से ये माइनस होगा। क्या लिखा मैंने? ये यहां पे 2c स्क्वायर ए स्क्वायर, मैंने केवल सेकेंड वाले को स्क्वायर कर डाला। अब ये निकालने के लिए मुझे हो सकता है इनकी जरूरत पड़े, हो सकता है इनकी जरूरत पड़े। मैं एक बार इनसे ट्राई करता हूं, मैं इनको स्क्वायर कर देता हूं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, प्लस 2ab 2bc 2ca इज इक्वल टू, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया 4। ये किसके बराबर है? ये वैल्यू किसके बराबर है? 6 के। यहां 6 पुट कर दिया, 6 राइट साइड में चला जाएगा, -2 बन जाएगा, 2 कैंसिल कर दिया। तो एक हिसाब से आपको इसकी वैल्यू मिल गई -1। ये वाला 6 राइट साइड में जाएगा, -2 अपॉन 2 -1। ये वैल्यू -1 के बराबर है। मेरे पास अभी भी स्क्वायर मिसिंग है, मेरे को स्क्वायर कहां से मिलेंगे? अब मैं और पीछे जाता हूं। इनका कोई लिंक पता है क्या मुझे? तो बहुत पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई है, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना, अभी a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये माइनस नीचे लिखा है मैंने, -ab -bc -ca। याद करो, ये तीन सिताबा यूज किया आपने अभी तक। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज 8 -3abc। मतलब जितना एल्जेब्रा जानते हो सब लगा दो यहाँ पे आप। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? a प्लस बी प्लस सी इज 2। व्हाट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? दैट इज 6।
एंड ये दो का मल्टीप्लीकेशन अभी आया ना आपके सामने, ये कितना आया -1, तो ये सब -1 के बराबर, तो माइनस माइनस 1 कितना बन गया राइट साइड में 14, राइट साइड में 14 बन गया, ये 14 लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो बन जाएगा -6 इज इक्वल टू 3 ABC, ABC इज इक्वल टू -2। अब इन दोनों को कंबाइन करके मुझे कुछ ना कुछ करके ये निकालना ही है, कुछ ना कुछ करके मुझे चाहिए ही चाहिए वैल्यू। अब मैं इस पूरे को स्क्वायर कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं इसको पूरे को स्क्वायर कर रहा हूं, तो आपका आ जाएगा A² B², B² C², ध्यान से, प्लस C² A²। अब क्या होगा, दो करके मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ट्वाइस बनेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा AB² C। फिर क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा आपके पास ABC²। ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा अपने पास A² BC। अब हमको ये वाली वैल्यू थी ना, हमने इसको स्क्वायर किया था, ये बनना है, ये वाली वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अब देखो इन सब में क्या कॉमन है बेटा, इन सब में क्या कॉमन है, ABC ABC कॉमन है, मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ABC, अंदर बच गया A+B+C राइट साइड वन, ये हम निकालना चाहते हैं, इसको मैंने K लिख दिया, दिस इज K फॉर मी। ये किसके बराबर है, -2 के, ये किसके बराबर है 2 के, 2 इंटू -2 इंटू 2, 2 -2 इंटू 2 -8, -8 वहां चला जाएगा राइट साइड, तो K इज इक्वल टू 9। यहां बेटा आप 9 पुट कर दो, ये खुद 9 के बराबर है, इंटू 2, तो ये जो आपका आंसर है, टू इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो A to the power 4, B to the power 4, C to the power 4 is equal to 18। जितनी एल्जेब्रा जानते थे, स्क्वायर के बारे में, क्यूब के बारे में, डिग्री 3 डिग्री 4 के बारे में, सब लगा दिए हमने यहाँ पे। क्या ऐसे क्वेश्चन कैट में आ सकते हैं? वेल, पिछले वाले 2 क्वेश्चन थोड़े एडवांस हो गए हमारे, इंक्लूडिंग दिस वन, बट रिविजन ही एक तरह से प्रैक्टिस है, सारी क्वेश्चन तो आपको आती ही है। All these equations we have seen several times. Take your time, copy this down, complete this. और इसमें कुछ नहीं करना, आपको कॉमन सेंस लगाओ, सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे रिपीटेड एप्लीकेशन आ रखे हैं कैट में, देखो, यू आर एबल टू सी दिस इज कॉमन इन बोथ। अगर मैं इसको एक वेरिएबल मान, लेट अस से k, सामने है k
अंदर है k माइनस 11 प्लस 24। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बेटा, इट्स नॉट सिंगल क्वेश्चन, दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो बस क्या क्या करना है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने कह रहे हैं। अब 11 बनता है 3 प्लस 8 से, और 24 बनता है 3 इंटू 8 से, तो k का वैल्यू आ गया। अब k तो खुद किसी और के बराबर था ना, इसको सॉल्व करना है। तो ये साइन चेंज होता है, ये साइन चेंज होता है, ध्यान देना। एडिशन ऑफ जो रूट्स है वो -2 है, और मल्टीप्लीकेशन -3 है। तो ये -3 इंटू 1 -3 प्लस का दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1। मैं अगर 8 के बराबर कर दूं इसको, तो दिस इज व्हाट यू एंड अप विद। अब यहां पर फिर से दो नंबरों का एडिशन बेटा -2 है, और उनका मल्टीप्लीकेशन -8 है। ऐसा लग रहा है क्या, -4 इंटू 2 -4 प्लस 2। तो आपके दो वैल्यू और आ गए x के। तो देर आर 4 वैल्यूज फॉर x, सब लिखे -3 प्लस 1 -4 प्लस 2। आप चाहो तो उनको पुट करके चेक कर लो, इफ यू वांट टू टेस्ट पुट इट रिवर्स इन टेस्ट। तो कैट में आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। यूजुअली ऐसा नहीं पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पूछेगा आपसे हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, या फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऐसा पूछेगा आपसे। कैट में से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये सेकंड वाला आप लोग बनाओ, फर्स्ट मैंने बना दिया आपके लिए। देखो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, k के दो वैल्यू आ गए, और उन दोनों के लिए दो दो वैल्यू आ गए x के, विच आर नेचुरल नंबर्स। If this is k, this is k, we have k square minus 7k plus 10 is equal to 0. So this can be seen as 2 plus 5, and this can be seen as 2 into 5. So there are two values of k, 2 and 5. What is k? X square plus x is equal to k. 2 ले लिया हमने, इधर ले x square plus x minus 2 is equal to 0. तो आपके रूट बन गए -2 and 1। इसको हमने 5 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5 इज इक्वल टू करके इधर ले आया -5। अब दो रूट का जो एडिशन है बेटा दैट इज -1, एंड दो रूट का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज -5। ऐसा नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इंटीजर नहीं आएगा, तो आपको फिर डेल्टा रास्ते जाना पड़ेगा। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1,
-4 इंटू -5 अपॉन 2 बन जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √21/2। वैल्यू तो 4 है, चारों वैल्यू रियल भी है। बस सेकेंड वाले में, दूसरे वाले में थोड़ा सा वैल्यू डिफिकल्ट आ रहा है, सर्ड वैल्यू आ रहा है, सर्ड रूट आ रहा है। डन है ये। That's it for today. अभी आप लोगों का अरिथमेटिक डन है, एल्जेब्रा वी हैव कंप्लीटेड, पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रा इज 30% डन। अभी मॉक्स में बेटा आप लोगों के रिजल्ट दिखना चाहिए। मॉक्स जो आप अपीयर कर रहे हो उसमें कट ऑफ निकलने चाहिए, बेसिक कट ऑफ जो रहते हैं। नहीं निकल रहे हैं तो डिस्कस दैट विथ मी, कौन से मॉक बना रहे हो, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। नहीं बेटा, प्लस माइनस मिस्टेक कर रहे हो तो राजरा, वहां पे जो बीच वाला सेंट्रल टर्म होता है ना, वहां प्लस माइनस मिस्टेक कर रहे हो आप। देखो मैं आपको फिर दिखाता हूं बेटा। ये वाला जो होता है ना, जब एडिशन ऑफ रूट लेते हैं ना, एडिशन ऑफ रूट में इसका साइन चेंज किया आता है पहले, तो -11 का +11 बन जाएगा। दैट इज वाई इट इज 3 + 8, और ये 3 इंटू 8 बनेगा। आखिरी टर्म इज a इंटू बी और बीच वाली टर्म इज -a+b, तो बीच वाली टर्म का साइन चेंज किया जाता है। आप यहां पे भी आप देखोगे, यहाँ पे 2 है, मैं सॉल्व करते टाइम a+b को -2 ले रहा हूं, यहां पर 1 है, मैं a+b को -1 ले रहा हूं सॉल्व करते टाइम, सेंट्रल टर्म का साइन चेंज होगा। Done. Done from this side. Polynomials is over. Yeah. Good night, guys.